بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں عبدالباری ندوی آپ کی خدمت میں آج سے النحو الواضح تیسرا حصہ، اس کے دروس، النحو الواضح کے دروس آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات استفادہ کریں گے، بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم نے النحو الواضح تیسرے حصے کا انتخاب کیا ہے اس لیے کہ بعض اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے، ان کی درخواست ہے۔ ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے دروس کا یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کروں۔ میرا نام عبدالباری ہے، میں نے ندوۃ العلماء سے عالمیت کی ہے اور عربی ادب میں تخصص کیا ہے، یعنی فضیلت کی ہے، اور کشمیر یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا ہے اور ساتھ ہی نیٹ کوالیفائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی سے ایم اے عربک کر رہا ہوں۔ چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پر کتاب ہے آپ کے سامنے، عنوان ہے المبتدأ والخبر وتطابقهما۔ مبتدا اور خبر اور ان دونوں کے درمیان مطابقت۔ تو اس سبق کے اندر عنوان سے جیسا کہ پتہ چل رہا ہے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے، اس سے النحو واضح کے اس سے پہلے والے حصوں میں، یعنی اول اور دوم میں مبتدا خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے۔ مبتدا کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شروع میں آتا ہے، ابتدا یبتدی، ابتداء سے المبتدا اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور خبر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ مبتدا کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، یعنی اگر مبتدا نکرہ ہے تو صرف محض نکرہ ہونا، صرف نکرہ مبتدا نہیں ہو سکتا، بلکہ نکرہ کے مبتدا بننے کے لیے مخصوصہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، وہ کسی اور سبق میں ہم بتائیں گے تفصیل سے۔ اس کے علاوہ مبتدا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بیسک اور بنیادی چیز یہی ہے۔ اور اس کے بعد خبر، جس طرح سے آپ نے موصوف صفت کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے کہ موصوف جیسا ہوتا ہے ویسی ہی صفت ہوتی ہے، تب بیش اسی طرح سے ہے کہ خبر یعنی مبتدا جیسا ہو ویسی ہی خبر ہوتی ہے۔ البتہ فرق اس میں یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ معرفہ، اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی۔ کیونکہ بعض صورتیں ہیں، یہ بنیادی چیز ہے، کبھی بعض صورتوں میں خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر جو قاعدہ ہے بتایا جاتا ہے نحو کی کتابوں میں، اور جو مستعمل قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے آپ پہچانیں کہ کون مبتدا ہے کون خبر ہے، تو مبتدا اور موصوف صفت، یعنی یوں سمجھ لیجئے جملہ موصوف صفت کا جملہ ہو، مرکب توصیفی اور مبتدا خبر کا جملہ، دونوں میں فرق کرنا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پر پہلا جملہ ہے النمر شرس، اسی طرح اس کے نیچے جملہ ہے الکلب الیف، اور تیسرا جملہ آپ دیکھیں النجم لامع۔ النجم لامع، اس جملے کے بارے میں ہم کیسے پتہ کریں گے کہ یہ موصوف صفت کا جملہ ہے یا مبتدا خبر کا جملہ ہے؟ موصوف
इस ये जो जुमला है अन्नज्मु लामिउन, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो पता करने का, मालूम करने का और जानने का तरीका यह है कि हम ये देख रहे हैं कि अन्नज्मु मारिफा है और लामिउन क्या है? नकिरा है। और अभी मैंने बताया कि मुब्तदा क्या होता है, आमतौर पर मारिफा और खबर नकिरा होती है। तो आपकी समझ में आ गई बात, यहाँ पर अन्नज्मु मुब्तदा और लामिउन खबर है। इसके बाद अगर ये मौसूफ सिफत का जुमला होता तो अन्नज्मु के साथ के बाद लामिउन भी मारिफा होता और हम कहते अन्नज्मु अल-लामिउ या नज्मुल लामिउन, यानी दोनों नकिरा या दोनों मारिफा। बात समझ में आ रही है? तो अन्नज्मु लामिउन ये मुब्तदा खबर का जुमला है। इस सबक के अंदर ये मैंने तब थोड़ी सी बात बताई मुब्तदा खबर के ताल्लुक से, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं और जानते होंगे। इस सबक के अंदर साहिब किताब, मुअल्लिफ किताब ये बताना चाहते हैं कि मुब्तदा और खबर के दरमियान क्या मुताबकत होती है, क्या सिमिलरिटी होती है। पहली चीज देखिए, पहली मिसालें और पहला जो ग्रुप है, अन्नमिरु शरीसुन, अल-कल्बु अलीफुन और अन्नज्मु लाफिउन। अन्नमिर चीता समझते हैं, शरीसुन के माने हैं, शरीसुन कहते हैं अक्खड़ मिजाज यानी बद मिजाज को, सख्त मिजाज वाले को। तो चीता सख्त मिजाज, तुंद मिजाज का है वाला है। अल-कल्बु अलीफुन, अलीफ कहते हैं पालतू को, फेमिलियर जो हो, मानूस हो। और अन्नज्मु लामिउन, कुत्ता पालतू है। अन्नज्मु लामिउन, तारा चमकदार है, सितारा चमकने वाला है, चमकदार है। तो इन मिसालों में आप देख रहे हैं अन्नमिरु मुब्तदा मुज़क्कर है, खबर भी मुब्तदा मुज़क्कर, ठीक। अल-कल्बु मुब्तदा है और मुज़क्कर है, इसलिए अलीफुन भी मुज़क्कर है। दूसरी चीज, अन्नमिरु मुज़क्कर है और साथ साथ वाहिद भी है, वाहिद है, इसलिए खबर भी क्या है? शरीसुन वाहिद है। अल-कल्बु मुब्तदा है, मुज़क्कर है, मुब्तदा मुज़क्कर है और वाहिद है, इसलिए इसकी खबर जो है वो भी क्या है? वाहिद है और मुज़क्कर है, ठीक। अन्नज्मु लामिउन, अन्नज्मु मुब्तदा वाहिद और मुज़क्कर, इसलिए खबर लामिउन भी मुज़क्कर है और वाहिद है। तो इन तीन मिसालों के जरिए से साहिब किताब ने ये बताया कि अगर मुब्तदा मुज़क्कर हो और वाहिद हो तो खबर भी वाहिद और मुज़क्कर होगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद नीचे आइए ग्रुप नंबर 2, दूसरे ग्रुप में देखिए अल-बत्ततु साबिहतुन। हम इन मिसालों को पढ़ने के बाद जो नीचे दर्स दिया गया है, डिस्कशन जो अल-बहस है, उसको भी हम पढ़ेंगे हर्फ ब हर्फ। पहले आप ज़बानी सुने और समझें। अल-बत्ततु साबिहतुन, बत्तह कहते हैं बतख को, साबिहतुन सबह यसबहु से तैरना, साबिहा इसमें फाइल है, तैरने वाली। तो अल-बत्ततु साबिहतुन, आप देख रहे हैं ये मुब्तदा खबर का जुमला है। कैसे मालूम किया आपने कि मुब्तदा खबर का जुमला है? इसलिए कि पहला वाला जो कलिमा है वो मारिफा है और दूसरा जो कलिमा है वो नकीरा है। तो आप जानते हैं कि मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है, इसलिए हमें पता चल गया, मालूम हो गया कि ये मुब्तदा खबर का जुमला है और ये मुरक्कबे ताम है, कलाम है, जुमला मुफीदा है। इसके बरअक्स जो मौसूफ सिफत का जुमला होता है, मिसाल के तौर पर अगर इसी जुमले को हम मौसूफ सिफत का जुमला बनाएं तो हम ये कहेंगे कि अलबत्ततु साबिहतुन के बजाय क्या होगा? अलबत्ततु अस्साबिहतु
फिर उस सूरत में ये मुब्तदा खबर का जुमला नहीं रहेगा, बल्कि ये मौसूफ सिफत का जुमला बन जाएगा और जुमले गैर मुफीदा कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो आप देख लें, अलबत्ततु साबिहतुन, अलबत्ततु मुब्तदा है और वाहिद है, सिंगुलर नंबर, और मुअन्नस है। ऊपर क्या था, मुब्तदा वाहिद और मुज़क्कर था, तो खबर भी वाहिद और मुज़क्कर। इसके बाद जो दूसरा जो ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त, इसमें मुब्तदा वाहिद है और मुअन्नस है। इस मुअन्नस की अलामत यहाँ पर बोलता है आखिर में, इसलिए साबिहतुन जो खबर लाई गई है उस वो भी वाहिद है और मुअन्नस है। दूसरी मिसाल, ज़ैनबु मुतीअतुन, ज़ैनब इताअत गुजार है, इताअत करने वाली, फरमा बरदार है। तो ज़ैनबु ये अलम है, मुअन्नस का नाम है, तो यहाँ ये मुअन्नस हकीकी है, इसलिए तानीस की अलामत की जरूरत यहाँ नहीं है। मुतीअतुन खबर है, तो ज़ैनबु मुब्तदा वाहिद मुज़क्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है, मुतीअतुन इसीलिए खबर भी वाहिद मुअन्नस लाई गई। तो मुताबकत आप देख रहे हैं मुब्तदा खबर में। पहले वाले ग्रुप में आपने देखा कि मुब्तदा मुज़क्कर वाहिद, मुताबकत के तौर पर खबर भी वाहिद मुज़क्कर। इसी तरह से इन दूसरी मिसालों में, दूसरे ग्रुप की मिसालों में मुब्तदा वाहिद मुअन्नस, खबर भी वाहिद मुअन्नस। तीसरा जुमला देखिए, अल मदीनतु आमिरतुन, अल मदीनतु आमिरतुन। आमिरा के माने आते हैं आबाद, अमरा यामुरु के माने आबाद करना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो अल मदीनतु आमिरतुन, शहर आबाद है, यानी लोगों से आबाद है। अल मदीनतु वाहिद, ये मुब्तदा है, सबसे पहली चीज मुब्तदा है। मुब्तदा क्यों है? पहले ये सवाल पैदा होता है कि मुब्तदा है हमने कह दिया, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने कैसे पता कि ये मुब्तदा है, पहला कॉमन जो जवाब होता है आमतौर पर तलबा के पास वो कहते हैं कि अल मदीना मुब्तदा इसलिए है कि शुरू में आ रहा है, मुब्तदा उसी को कहते हैं जो शुरू में आए। तो मैं कहता हूं जवाब में, शुरू में तो मौसूफ भी आता है। मिसाल के तौर पर अल मदीनतु अल आमिरतु, मौसूफ सिफत का जुमला अगर हम इसे बनाएं तो इसमें भी अल मदीनतु शुरू में आ रहा है। ये कॉमन जवाब है। असल जवाब जो होना चाहिए वो ये कि अल मदीनतु जो कलिमा है इसके बारे में, इसके मुताल्लिक आमिरतुन जो कलिमा इसके बाद आ रहा है उसके जरिए से एक खबर दे रहे हैं हम, उसके बारे में एक खबर दे रहे हैं कि अल मदीना यानी मदीना जो है वो आबाद है, भरा हुआ है लोगों से, शहर आबाद है, लोगों से मामूर है, पुर है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप इन दो ग्रुप्स की मिसालों से साहिब किताब ने आपको ये बताया है कि मुब्तदा अगर वाहिद मुज़क्कर हो खबर भी वाहिद मुज़क्कर होगी, और अगर मुब्तदा मुअन्नस हो वाहिद मुअन्नस खबर भी वाहिद मुअन्नस होगी। इसी पर आज के हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सिलेबस, अगला जो हिस्सा हम पढ़ेंगे। आप तमाम लोगों से जो है दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप तक बराह रास्त पहुंच सके।